Very good morning, students. Now we comes on 15th lecture of successive differentiation, and now here we will see the new topic, that is the indeterminate form that we have to see. So how we define that indeterminate form? If the value of the function at x is equals to a, if it should take the following forms, a particular function and we considering a point x is equals to a, and if it takes that type of form, that is 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 1 raised to infinity, 0 raised to infinity, 0 into infinity, infinity raised to 0, or 0 raised to 0. If the form should be in this form, these are called as a indeterminate form. अभी जो indeterminate form रहते हैं ये soluble नहीं रहते, but you have to reduce that form into some soluble form, and that is called as a Cauchy's rule. हम Cauchy's rule से इसको reduce करते हैं indeterminate form को. So how we can reduce that? If f of x and g of x are the functions of x and at x is equals to a, अगर ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स किसके फंक्शन है? एक्स के फंक्शन है, एंड एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए, बोथ द वैल्यू एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो हाउ वी कैन टेक दैट? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. अब ये अगर बोथ 0 हो जाएंगे तो हमारा फॉर्म क्या आएगा? यहाँ पे 0 बाय 0 आ जाएगा. As the f of x and g of x is equals to 0 at x is equals to a. So that means when you apply the limit x tends to a, f of x upon g of x, it is a 0 by 0, that is nothing but a indeterminate form. But we have to reduce that indeterminate form. So how we can reduce? So here we apply the Cauchy's rule. By the Cauchy's rule, limit x tends to a, you have to take the derivative of numerator, that is f dash of x, as well as derivative of g of x, that is a g dash of x with respect to x. सो यहाँ पे आप दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का. तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपका जो फॉर्म रहता है इंडिटरमिनेंट फॉर्म, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट फाइनली यू कैन टेक द लिमिट ऑफ दैट गिवन फंक्शन. तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे हम लोग आप सॉल्व करेंगे वन बाय वन. ये सभी फॉर्म्स के प्रॉब्लम हम देखेंगे, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ऑल दैट फॉर्म्स. सो इनिशियली सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे. व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ cos ऑफ x. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज आवर सॉल्यूशन और आंसर. सो वी कंसीडर दैट लेट L is equals to, we consider that limit as L is equals to limit x tends to 0. How is our function? That is log of 1 minus x square upon log of cos of x. So that is our form. So now we consider that problem here. L is equals to limit x tends to 0 log of 1 minus x square upon log of cos x. अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, when you put x is equals to 0, what happen? That term x square become a 0. So there is simply log 1. यहाँ पे डिनोमिनेटर में log ऑफ cos ऑफ 0 इज नथिंग बट 1, दैट इज log 1. अब हम सब लोगों को पता है कि log 1 क्या रहता है? log ऑफ 1 इज नथिंग बट 0. मतलब न्यूमरेटर में आपकी वैल्यू आएंगी 0 और डिनोमिनेटर में भी आपकी वैल्यू आएंगी 0. सो द फॉर्म इज 0 बाय 0. As it is a form 0 by 0, so it is a indeterminate form. So we have to convert that indeterminate form. We have to reduce that indeterminate form. So what we do here? So we apply the Cauchy's rule. So how we can apply the Cauchy's rule? By the Cauchy's rule. क्या करते हैं हम? Cauchy's rule से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी फंक्शंस रहते हैं, we take the derivative of that to reduce that indeterminate form. So here we write L is equals to limit x tends to 0. अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, log of 1 minus x square. What is the derivative? That is 1 upon 1 minus x square. And repeat derivative of 1 minus x square, that is nothing but a minus 2x. उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, log of cos x, derivative is 1 upon cos of x, and cos x का repeat derivative, that is nothing but a minus sin x. Derivative of log of cos x 1 by cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 2 है, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के. सो L इज इक्वल्स टू, वी राइट 2 into लिमिट
x टेंस टू 0। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, देयर इज x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, देयर इज अ sin x अपॉन cos x। सब लोगों को पता है sin x अपॉन cos x इज नथिंग बट अ tan x, सो वी पुट हियर tan x। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे, व्हेन वी पुट 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 और tan x tan 0। अब tan 0 क्या आने वाला है, दैट इज sin 0 अपॉन cos 0। अगेन आवर फॉर्म शुड बी 0 बाय 0, ऐसे फॉर्म में आने वाला है, बट हम इसको अब रिड्यूस करेंगे टू दी 0 बाय 0 के फॉर्म से टू गेट द अनदर फॉर्म, दैट शुड बी वी गेट द फाइनल आंसर। सो हाउ वी रिड्यूस दैट, तो देखो कैसे हम रिड्यूस करेंगे, दैट इज 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0। अब ये जो x है ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर का x कहाँ आता है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। सो हाउ वी कैन टेक दैट 1 अपॉन एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x, और ये जो आपका x है न्यूमरेटर का वो आ जाएगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, दैट इज tan x अपॉन x। सो अब ये तो हो गया tan x अपॉन x। अब जब आप लिमिट इसको अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, बट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 रहेगा न्यूमरेटर। व्हेन यू अप्लाई लिमिट x टेंस टू 0 टू tan x by x, सो लिमिट x टेंस टू 0 tan x by x इज नथिंग बट 1। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोगों को पता है, आपने 12th में देखे होंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा व्हेन यू अप्लाई द लिमिट x टेंस टू 0 दैट इज 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। सो हम क्या लेंगे, यहाँ पे l इज इक्वल्स टू 2 इंटू व्हेन यू अप्लाई द लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1। सो फाइनली 2 इंटू 1 इट बिकम 2, सो दैट इम्प्लाइज l इज इक्वल्स टू 2। मतलब जो आपका लिमिट का आंसर था दैट वी गेट अ फाइनाइट आंसर दैट इज l इज इक्वल्स टू 2। हमारा जो इंडिटरमिनेट फॉर्म था 0 बाय 0, हमने उसको बाय द कॉचीज रूल क्या किया, रिड्यूस किया। हाउ वी रिड्यूस दैट, वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, देन वी सिंप्लीफाई दैट टर्म, और ऐसे फॉर्म में उसको लिखा, ये जो x था न्यूमरेटर का x कहाँ पे चला गया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। फाइनली ये अगर आप लेंगे तो अगेन ये आ जाएगा ऊपर, पर हमें यहाँ पे उसकी जरूरत थी तो ax हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, और फिर we take the result of that limit x tends to 0 tan x by x is equals to 1, और यहाँ पे when you put the 0 simply there is a 1, so 2 into 1 it become a 2। so in this way we get the answer। अब इसी तरह से हम सेकंड लिमिट का भी रिजल्ट देखेंगे। अब आ जाते हैं हम इस प्रॉब्लम की तरफ। अगेन वी पुट हियर x is equals to y, यहाँ पे y आ जाएगा y रेस टू y माइनस यहाँ पे y आ जाएगा y रेस टू y माइनस y रेस टू y, मतलब ये होगा 0। व्हेन यू पुट द लिमिट हियर y रेस टू y माइनस y रेस टू y, सो अगेन इट बिकम अ 0, तो हमारा फॉर्म आ जाएगा 0 बाय 0। सबसे पहले तो फॉर्म चेक करना, सो रिमेंबर दैट व्हेन यू गेट सम प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्म चेक करना है, वो 0 बाय 0 है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, उसके अदर दैन दैट है, और फिर उसको हम करेंगे रिड्यूस बाय अप्लाइंग द कॉचीज रूल। सो बाय द कॉचीज रूल, बाय कॉचीज रूल क्या करने वाले हैं हम, बाय कॉचीज रूल वी टेक अ न्यू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो x टेंस टू y, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम डेरिवेट करेंगे x रेस टू y को, उसके बाद माइनस यहाँ पे डेरिवेट करेंगे y रेस टू x को, उसके बाद डेरिवेट करेंगे हम x रेस टू x को, और उसके बाद हम डेरिवेट करेंगे y रेस टू y को। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिखा कि यहाँ के अलग अलग टर्म्स है। अब सबसे पहले हम डेरिवेशन देखेंगे x रेस टू y का, x रेस टू y, x रेस टू y कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ x रेस टू n, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x रेस टू n। और सबको पता है कि x रेस टू n का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं सो दैट इज नथिंग बट n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो यहाँ पे भी n की जगह y है, सो वी राइट हियर y इंटू एक्स रेस टू y माइनस 1। अब आगे आ जाते हैं आगे की टर्म की तरफ, सो डेरिवेटिव ऑफ y रेस टू x। अब ये कौन से फॉर्म में फंक्शन दिख रहा है हमारा, यहाँ पे x वेरिएबल है और y क्या होगा, y कांस्टेंट होगा यार, इट इज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दैट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो क्या होगा y रेस टू x, ये कौन से फॉर्म में आपका फंक्शन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a रेस टू x।
ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव पता है, ये यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, दैट इज इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे y भी कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो डेरिवेटिव क्या होगा, ऐसे फॉर्म में होगा, a की जगह y है तो यहाँ पे y रेस टू x आएगा ऑन द इनटू लॉग ऑफ y, ऐसे फॉर्म में ये फंक्शन है। अब आ जाते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ, दैट इज डी डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x। अब आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो पावर में भी x है और बेस में भी x है, सो देयर इज टू टर्म्स ऑफ x। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। एक बार हम जो बेस में है x उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये a x कांस्टेंट रहेगा, सेकंड टाइम इस x को एज इट इज रखेंगे हम, और जो पावर में x है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम, सपोज फर्स्ट वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट x विच इज इन अ बेस, ओके। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा फिर x रेस टू n के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का जो x है पावर का x वो कांस्टेंट रहेगा, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x रेस टू n। मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स रेस टू x माइनस वन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट रखा और इसको वेरिएबल लिया, ओके। तो ये क्या होगा, x इंटू एक्स रेस टू x माइनस वन, ओके। सेकंड टाइम अब क्या करेंगे, अब ये कांस्टेंट रहेगा और ये डेरिवेट होगा, तो ये एज इट इज, बट अब ये कौन से फॉर्म में आएगा, ये ए रेस टू एक्स के फॉर्म में आए, और ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमें बताया ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो अब ये कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज अ डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे ए रेस टू एक्स के फॉर्म में, सो एक्स रेस टू एक्स होगा इंटू लॉग ऑफ एक्स होगा, ओके। ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका डेरिवेटिव। ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे दो टर्म्स है x की, तो वन बाय वन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। सबसे पहले हम बेस का जो x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर का x कांस्टेंट रहेगा। अब बेस का x को हम अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब ये वेरिएबल है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x रेस टू n, और पावर का x है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन के फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज x इंटू एक्स रेस टू x माइनस वन, प्लस सेकंड टाइम अब बेस का x कांस्टेंट रहेगा, पावर का वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा, सो पावर के x को हम डेरिवेट करेंगे, तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a रेस टू x। सो डेरिवेशन इज a रेस टू x इनटू log a, तो ये हो जाएगा x रेस टू x इनटू log x, ओके। सो अब इसको करेंगे सिंप्लीफिकेशन हम, तो हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दैट। अब ये कैसे लिख सकते हैं हम, x रेस टू x अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस वन है, तो x रेस टू x अपॉन x, ये x अगर ऊपर चला गया तो x रेस टू x माइनस वन, यहाँ पे x रेस टू x और यहाँ पे है हमारा log x। अब क्या हो जाएगा, बोथ x गेट ए कैंसल, x रेस टू x इज अ कॉमन टू बोथ द टर्म्स, सो वी राइट हियर डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x इज इक्वल्स टू, यहाँ से x रेस टू x कॉमन निकल जाएगा एंड वी गेट वन प्लस log ऑफ x। इस तरह से हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड अप टू दैट। अब सभी के डेरिवेटिव हम इस स्टेप में ऐड करेंगे, सभी पुट करेंगे। ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे सभी टर्म्स। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव एक्स रेस टू वाई की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई रेस टू एक्स की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स की वैल्यू पुट की है, और फाइनली यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई रेस टू वाई। अब हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो होगा। अब करते हैं लिमिट पुट। अब हमारा फॉर्म हो गया रिड्यूस। अब रिड्यूस कैसे होगा ये हम चेक कर लेंगे लगे तो एक बार। अब अगर यहाँ पे y पुट करेंगे तो y रेस टू y माइनस वन, वहाँ पे y रेस टू y log y, मतलब ये यहाँ पे जीरो होने वाला नहीं। न्यूमरेटर में अगर डालेंगे तो y रेस टू y वन प्लस log y, ये भी जीरो होने वाला नहीं है, मतलब हमारा फॉर्म हो गया रिड्यूस। सो वी पुट द लिमिट। सो लिमिट अगर यहाँ पे पुट करेंगे आप x इज इक्वल्स टू y, तो देखिए आपके टर्म क्या होंगे, y रेस टू y माइनस वन माइनस y रेस टू y log ऑफ y, डिनोमिनेटर में y रेस टू y, यहाँ पे वन प्लस log ऑफ y। सो L इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगेन हम इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो ये y रेस टू y हो जाएगा, और यहाँ पे भी y रेस टू y है, तो बोथ गेट कॉमन। लगे तो एक स्टेप हम ज्यादा कर लेते हैं। सो y रेस टू y अपॉन y माइनस y रेस टू y इंटू log y, अपॉन में यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y रेस टू y वन प्लस log y। अब आपको ध्यान में आ गया होगा
कि दैट इज नथिंग बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में y रेस टू वाई 1 प्लस लॉग y आ जाएगा और न्यूमरेटर में क्या होगा y रेस टू वाई कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे y रेस टू वाई कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे रहेगा 1 माइनस लॉग ऑफ y, here is a 1 minus log y, so y raised to y get cancelled. And finally we get L is equals to 1 minus log y upon 1 plus log of y. So finally we get L is equals to this. In this way we get the answer of that limit. We convert that indeterminate form into solvable form and we get the finite answer. So we will now stop that here. That's form of 0 by 0 and we see some other problems on the different forms. Now there are two more problems I have written here and we will see one by one. First we check the forms and then we will solve it. But here remember that note, if the form is other than 0 by 0 or infinity by infinity, अगर इसके अलावा दूसरे फॉर्म्स आते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, सो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड देन वी हैव टू अप्लाई द कॉचीज रूल. कॉचीज रूल हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका फॉर्म 0 by 0 हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो. तो जो कुछ भी इंडिटरमिनेट फॉर्म रहेगा अदर देन दैट यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. अब सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे. सो व्हाट्स आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, आई विल राइट हियर. सो अगेन वी कंसीडर दैट लेट L is equals to limit x tends to 0. Here is a tan of x into log of x. अब अगर when we apply the limit tan 0 and here is a log 0, तो tan 0 सबको पता है tan 0 क्या होगा, 0 होगा because sin 0 upon cos 0. sin 0 is a 0 upon cos 0 is a 1, so 0 by 1 that is a 0 और log 0 is nothing but a infinity. तो ये फॉर्म होगा आपका 0 into इन्फिनिटी का. अब ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है बट यहाँ पे हम कॉचीज रूल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते नहीं है. सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. तो अब हम फॉर्म को कैसे रिड्यूस करेंगे. अब देखो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखना कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो डिनोमिनेटर में जा सकता है. अब log x को तो हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते बट यहाँ पे tan x को हमें पता है कि tan x कैन बी रिटन एज 1 upon cot x. So that 1 upon cot x, that cot x comes in a denominator. So how we write here? We put here tan x is equals to 1 upon cot x. वो हो जाएगा 1 upon cot x. तो देखो हमारा फॉर्म कैसे रिड्यूस हो जाएगा. So we can write L is equals to limit x tends to 0. यहाँ पे आ जाएगा log x न्यूमरेटर में एज इट इज रखेंगे और tan x को लिखेंगे 1 upon cot x. तो ये हो गया आपका cot x. अब थोड़ा सा ध्यान से अब और चेक करेंगे फॉर्म. सो व्हेन यू पुट अ 0 तो log 0 infinity. When you put a 0 so cot 0 is also the infinity because cot 0 upon sin 0. So cos 0 is a 1, sin 0 is a 0, so 1 by 0 it become a infinity. तो यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. अब फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है सो वी कैन अप्लाई द कॉचीज रूल. तो अब क्या करेंगे हम, सो बाय दी कॉचीज रूल क्या करते हैं हम, कॉचीज रूल अप्लाई करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लेते हैं डेरिवेटिव. सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0. अब लेंगे हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव. हमें पता है log x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1 upon x और cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x. cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x. अब सबको पता है कि cosec स्क्वायर ऑफ x इज नथिंग बट cosec स्क्वायर ऑफ x कैन बी रिटन एज 1 upon sin स्क्वायर ऑफ x. इसको लिख सकते हैं हम 1 upon sin स्क्वायर ऑफ x. सो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 upon x यहाँ पे और इसको हम लिखेंगे माइनस साइन. हम लगे तो बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बाहर हम लिख सकते हैं माइनस साइन और कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स. अब ये कहाँ पे है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, इट इज इन द फॉर्म डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो हम इसको ले जा सकते हैं न्यूमरेटर में. सो हाउ वी कैन राइट देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू, ये चले जाएंगी टर्म साइन स्क्वायर ऑफ एक्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रह जाएगा एक्स.
अब थोड़ा क्या करते हैं, हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पे. हाउ वी स्प्लिट दैट, माइनस रहने तो यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे टर्म. लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक साइन यहाँ पे रखेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू सेकंड हम रिमेनिंग जो साइन एक्स है वो दूसरे टर्म के एज ए सेकंड टर्म लिखेंगे. सो देखो हमने कैसे स्प्लिट कर दिया यहाँ पे. ये दो साइन एक्स थे, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, तो वी पुट दैट वन साइन एक्स वी टेक विथ दैट कॉस एक्स, सॉरी दैट एक्स, सो इट बिकम अ साइन एक्स अपॉन एक्स, और रिमेनिंग साइन एक्स हमने साइड में लिखा, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स. अब हमें पता है कि व्हेन यू अप्लाई द लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू दैट टर्म, सो इट बिकम अ 1 इंटू व्हेन यू पुट द लिमिट, यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 इज अ 0, सो 1 इंटू 0 दैट इज नथिंग अ इनडिटरमिनेट फॉर्म. इसका फाइनाइट आंसर आने वाला है 1 इंटू 0 बिकम अ 0, तो 0 भी आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे लिमिट का आंसर होगा 0. तो क्या करेंगे हम, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू व्हेन यू पुट द लिमिट इट बिकम अ 0, सो फाइनली इट गिव्स अ 0, सो दैट implies L is equals to 0. तो इसका आंसर आता है L is equals to 0. So see that. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. L is equals to limit x tends to 0 cot x minus 1 by x. Now when you put x is equals to 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot 0. Cot 0 is nothing but a cos 0 upon sin 0. That form is a infinity. So ये इसका आंसर infinity होगा. minus 1 by 0 that is also infinity. मतलब आपका फॉर्म क्या आने वाला है, infinity माइनस infinity. तो सबसे पहले तो हमको इसको 0 by 0 करना है या infinity by infinity. अब देखते हैं कैसे करेंगे हम. L is equals to limit x tends to 0. अब ऐसे फॉर्म में अगर रहा तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में. ये तो है 1 by x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में. So we can write that cot x can be written as cos x upon sin, we write here cos x upon sin x minus 1 by x. अब क्या करना, now take a cross multiplication. So to reduce the form we take a limit x tends to 0, we take a cross multiplication. So x into cos of x minus of sin x upon x into sin x. And now we check the form. When you put a 0 here, cos 0 is a 1. So 1 into 0 0, ये हो जाएगा आपका sin 0 0. यहाँ पे आप पुट करते हैं तो a भी 0 हो जाएगा. मतलब फॉर्म हो गया आपका रिड्यूस 0 by 0 के फॉर्म में. अब हम लगा सकते हैं इसको Cauchy's rule. So by the Cauchy's rule क्या करेंगे हम, by the Cauchy's rule we take a derivative of numerator as well as denominator. So यहाँ पे आ जाएगा L is equals to limit x tends to 0. यहाँ पे क्या होगा, when you apply the differentiation तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा because there is a two terms of x. तो पहले x का डेरिवेटिव 1 लेंगे और cos x को एज इट इज रखेंगे. सेकंड टाइम x एज इट इज रखेंगे और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका माइनस sin x और माइनस ऑफ sin x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा आपका cos x. उसके बाद आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा. x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स प्लस x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos ऑफ x. इसको करते हैं हम कंप्लीट ब्रैकेट. अब थोड़ा अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है cos x, यहाँ पे है माइनस cos x. तो cos x माइनस cos x गेट का कैंसर. अब रहेंगे क्या हमारे पास, L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0. यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस x साइन x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस x इंटू कॉस ऑफ x. एक बार और फॉर्म चेक करते हैं आप. यहाँ पे when you put a 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0. मतलब फॉर्म अभी भी हमारा रिड्यूस हुआ नहीं है. अब अगर डेरिवेट करने के बाद भी फॉर्म नहीं रिड्यूस हो रहा है, सो अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट. अगेन आपको क्या करना है, इस टर्म को अगेन डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट के बाद हो सकता है ये फॉर्म रिड्यूस हो जाएगा. मतलब वो पॉसिबिलिटी रहती ही है. एक बार डिफरेंशिएशन के बाद अगेन अगर 0 by 0 आ रहा है, सो अगेन यू हैव टू अप्लाई द Cauchy's रूल. तो यहाँ पे हम डेरिवेट करेंगे. Cauchy's रूल मतलब वी डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो न्यूमरेटर भी अगेन देयर इज अ टू टर्म्स. यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा. माइनस साइन लगे तो हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पे. अब जब हम यहाँ पे डेरिवेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स लेंगे प्लस x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ x लेंगे. उसके बाद
यहाँ पे आ जाएंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस एक्स, प्लस अब x एज इट इज रखेंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स। अब देखो थोड़ा सा फॉर्म चेक करके, व्हेन यू पुट हियर 0 साइन 0 0 cos 0 1 but there is a 0, so न्यूमरेटर आ रहा है आपका 0 but when you put a 0 डिनोमिनेटर cos 0 is a 1, यहाँ पे भी cos 0 1, so 1 plus 1 2, 2 plus 0 is a 2। तो फॉर्म कैसे आ रहा है आपका, so L is equals to when you apply the limits, तो न्यूमरेटर तो 0 हो रहा है पर डिनोमिनेटर में cos 0 is a 1, 1 plus 1 so it become a 2, 2 plus 0 is a 2। तो फॉर्म आ रहा है आपका ऐसा, मतलब इसका फाइनाइट आंसर होगा 0। सो फाइनली वी गेट L is equals to 0। तो ये हो गया उसका आंसर कि आंसर 0 भी पॉसिबल है। सो वी विल स्टॉप दैट प्रॉब्लम हियर। I have written two problems on that above types here. Problems on the form 1 raised to infinity, 0 raised to infinity, infinity raised to 0 और 0 raised to 0। अब यहाँ पे एक नोट ध्यान में रखना कि अगर ऐसे फॉर्म में आप है आपके प्रॉब्लम्स में ऐसे फॉर्म आ रहे हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड। आपको लॉग अप्लाई करना है दोनों साइड से, सो योर फॉर्म शुड कन्वर्ट इनटू 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड देन यू कैन अप्लाई द कॉचीज रूल। तो अब सबसे पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे लिखते हैं। सो वी कंसिडर योर फर्स्ट प्रॉब्लम, अगेन वी कंसिडर दैट लेट L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1 बाय लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, अब थोड़ा अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे व्हेन यू पुट अ 1 x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, सो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बेस में 0 है। When you put 1 here, so 1 minus 1 0। अब ये 1 minus 1 0, so log 0, log 0, तो log 0 is a infinity, so 1 by infinity is again here, तो 0। तो फॉर्म कौन से आने वाला है आपका 0 by 0 फॉर्म होगा आपका, that it should be in this form। तो ये हो गया 0 raised to 0 का फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब अगर आपको फॉर्म आइडेंटिफाई भी नहीं हो रहा है, सो ऑब्वियस है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म का ही प्रॉब्लम रहने वाला है। बट अगर ऐसे फॉर्म में आ रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये 0 रेस्ट टू 0 का फॉर्म हो गया, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो लॉग 0 इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी, और आपको पता है कि 1 बाय इन्फिनिटी इज नथिंग बट अ 0। तो ये हो गया 0 रेस्ट टू 0 का फॉर्म। नाउ टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड। So we write here take a log on both sides। तो अब देखो दोनों साइड से log अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log L, log L is equals to limit x tends to 1। यहाँ पे वैल्यू अप्लाई द log, so 1 upon log of, यहाँ पे होगा आपका 1 minus x and here is log of 1 minus x square। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। सो वी टेक अ लॉग हियर, व्हेन यू अप्लाई द लॉग लगे तो हम एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पे। आप अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी लॉग होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हैविंग द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। अब सबको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि लॉग ए टू द पावर बी इज इक्वल्स टू बी इंटू लॉग ए, ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसे लिखेंगे। सो आई रीड ऑन दैट साइड, so that can be written as log of L is equals to, when you apply that property here, तो ये जो पावर है ये मल्टीपल में आ जाएगा। so that it can be written as limit x tends to 1, यहाँ पे 1 upon log of 1 minus x into log of 1 minus x square। अब फॉर्म चेक करो, 1 minus 1 0, सो ये लॉग 0 इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो फॉर्म हो गया आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। नाउ यू कैन अप्लाई द कॉचीज रूल। सो बाय द कॉचीज रूल से हम क्या कर सकते हैं, यू टेक अ डिफरेंशिएशन ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, सो रिड्यूस द फॉर्म। सो अब यहाँ पे पहले ये न्यूमरेटर की टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रिपीट डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, उसके बाद 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का रिपीट डेरिवेटिव दैट इज अ माइनस 1, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा वो। सो नाउ हाउ वी कैन राइट देन, सो दैट इज अ लिमिट x टेंड्स टू 1
यहाँ पे ये आ जाएगा आपका -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये डिनोमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, दैट इज 1 माइनस एक्स। अब देखो क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 1। अब अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 2 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो अगेन योर फॉर्म शुड बी 0/0। 0/0 है तो अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट टर्म। सो अब क्या करेंगे, log ऑफ L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1। 0/0 फॉर्म रिड्यूसिव होना चाहिए, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट न्यूमरेटर का करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेंगे, -2x का डेरिवेटिव -2 into 1 that is -2, 1 minus x remain as it is, plus -2x as it is, और डेरिवेटिव ऑफ दैट 1 minus x is a -1। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यहाँ पे -1 है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका -2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2x। अब पुट करेंगे, देखो 1 पुट करने के बाद ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये -2 into 1 -2 into 1 -1 दैट बिकम +2, मतलब न्यूमरेटर नॉन जीरो आ रहा है व्हेन यू पुट द लिमिट। यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, बट यहाँ पे प्लस -2 into 1 into दैट -1 अपॉन में -1 into -2 into दैट x is a 1। अब देखो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, तो दैट इज अ 2, यहाँ पे माइनस माइनस बिकम अ प्लस, सो हियर इज आल्सो 2, सो दैट इज नथिंग बट 1। सो log ऑफ L इज इक्वल्स टू 1, सो दैट इम्प्लाइज L इज इक्वल्स टू e रेज टू 1, दैट इज नथिंग बट e। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा, L इज इक्वल्स टू e। सो इन दिस वे वी गेट द आंसर व्हेन योर फंक्शन शुड बी इन दिस फॉर्म। अब ये आंसर यहाँ पे है a रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 1/x1 रेस टू इन्फिनिटी के फॉर्म में है। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई द लॉग ऑन बोथ साइड एंड यू हैव टू गेट द आंसर। तो ये आपके होमवर्क के लिए है, और एक दो प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ एंड यू हैव टू सॉल्व, इसका आंसर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। Here I have given 3 problems for your homework. First and limit x tends to 0 1 by log x minus x upon x minus 1। फॉर्म अगर चेक करोगे तो इट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बट फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। वो कैसे करना है आपको एक प्रॉब्लम में मैंने बताया था, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके आप फॉर्म रिड्यूस करेंगे। इसका आंसर है -1/2। ये फॉर्म चेक करोगे तो इट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यहाँ पे डायरेक्ट आप कॉचीज रूल अप्लाई कर सकते हैं एंड इस आंसर शुड बी 0। यहाँ पे फॉर्म है 1 रेस टू इन्फिनिटी, 1 रेस टू इन्फिनिटी है, दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया है, and then you can solve this। so answer है a into e। so that's all about the indeterminate forms problems, and that same topic we will continue in a next lecture। so we will stop here, thank you।